In this video, we will discuss about final accounts of sole trader. It is even called as proprietary concern. So let me explain the entire process as to how do we reach this stage of final account, what are the different types of accounts or statements we need to prepare, and what are the advantages and why do a person is preparing this, and what are the objectives of doing this. Let us start. We are discussing about final accounts of sole trader. Sole trader means a business which is run and managed by a single person. So the business which is run and managed by a single person is known as the final accounts of sole trader. Now, let us start as to how do we reach here. Now, normally a financial accounting year in India starts from 1/4 and ends 31st March. Any financial year in India starts from 1st April. For this example, let us take 1st April 2019 and ends on 31st March 2020. So in this entire year, the sole trader must have done a number of transactions. So in order, whenever a sole trader is doing transaction, he maintains certain books like journal to enter journal entries. He may even maintain a cash book to enter cash transactions. He may maintain subsidiary book. He may maintain say petty cash book. Okay, so during his course of business, जब वो business कर रहा है पूरे साल, तो जो भी वो बिजनेस में लेन देन करता है या जो भी ट्रांजैक्शन करता है, वो सब ट्रांजैक्शन को वो बेसिकली सब जगह पे रिकॉर्ड करता है. मेन इज द लेजर. बेसिकली जब भी वो कुछ भी ट्रांजैक्शन करेगा, तो सबसे फर्स्ट ही विल एंटर इट इन द जर्नल. जर्नल में उस ट्रांजैक्शन को वो रिकॉर्ड करेगा. तो पूरे साल में जितने भी ट्रांजैक्शन करता है, वो जर्नल में उस ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करता है. सो फर्स्ट ही विल रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शंस इन जर्नल. फिर वो जर्नल से वो उन सब एंट्रियों को रिलेटेड अकाउंट्स में ट्रांसफर करता है. सो फ्रॉम जर्नल ही विल प्रिपेयर लेजर. फ्रॉम जर्नल ही विल प्रिपेयर लेजर, क्योंकि जर्नल में बहुत सारी एंट्री हो जाएगी. एक एग्जांपल समझो, इन वन डे द बिजनेसमैन इज डूइंग से 20 ट्रांजैक्शंस. तो इन वन डे अगर वो 20 ट्रांजैक्शन करता है, तो एक महीने में से अगर 25 डेज वो काम करता है, तो 25 डेज इनटू 20 कितने ट्रांजैक्शंस हो जाएंगे? 25 2s are 500 ट्रांजैक्शंस हो जाएंगे एक महीने में. नाउ इट इज नॉट पॉसिबल फॉर हिम टू रिमेंबर ऑल दिस ट्रांजैक्शंस कि किससे पैसा लेना है, किसको पैसा देना है, किसका क्या चुकाना बाकी है. तो in order to avoid this mistakes, he will enter each and every transaction in the journal, and as per his convenience, say weekly, monthly, or by 15 days, he will transfer those balances from journal to respective ledgers. After that, say let us say throughout the year he has done many transactions. सब transactions को उसने ledger में transfer किया. Last week 31st मार्च को he will close all the ledgers. वो सब ledgers को बंद करेगा और हर एक ledger में उसको एक closing figure मिलेगा. कुछ ledgers में नहीं मिल सकता है, maybe they will tally, so there is no difference. But majority ledgers he will get a difference. Either the difference will be on the debit side or the difference may be on the credit side. From those closing figures of the ledgers, he will prepare a trial balance. From the closing figures of the ledger, he will prepare a trial balance, and from the trial balance, he will finally prepare final accounts. Now in final accounts, he will make a
trading account and profit and loss account and a balance sheet. So how the chain works, throughout the year he will do transactions, and then when he does transaction he will enter the transaction in the journal entry. Okay. He may even use these books like cash book, subsidiary book, petty cash book to record and find the figures, but basically for final account this is the channel. He will enter the transaction in the journal entry. From the journal he will transfer it into the respective ledgers. At the end of the year he may close all the ledgers. He may even close the ledgers in between, but we are concerned with the figures of the ledgers at the end of the year. So at the end of the year he will close down all the ledgers. From each ledger there will be a closing figure. Either the difference may be on the debit side or the difference may be on the credit side. From those closing figures he will prepare a trial balance, and from that trial balance he will prepare final accounts. In final accounts basically we require to prepare two accounts in one statement. So we will prepare a trading account, we will prepare profit and loss account, and last we will prepare one balance sheet. Now there may be certain things which he must have forgotten or he may have not recorded while the year. Those things are termed as adjustments. Those things are termed as adjustments. So basically this will be your question in final accounts. Question will be, a trial balance will be given to you and certain adjustments will be given to you. From those trial balance and adjustments you need to prepare final account. This is basically your sum in sole trading concern, final account of sole trader. So again, first he will enter things in journal. From the journal he will prepare ledger. From the he will close the ledger and he will get a closing figure. From those closing figures he will prepare a trial balance, and certain things would be there which he must have forgotten or which he has not entered. Those are termed as adjustment. And from the trial balance and adjustment he will prepare final account. So basically आपका क्वेश्चन कैसा आएगा, आपको हम ट्रायल बैलेंस देंगे, एडजस्टमेंट देंगे और इससे आपको फाइनल अकाउंट बनाना है। पर ये आपको याद रहना चाहिए कि क्या प्रोसेस होता है, इसके लिए मैंने ये बनाया कि वो कैसे प्रोसेस पे पहुंचते हैं हम लोग फाइनल अकाउंट के लिए। आपको एक बार ये कॉपी करना है, देन आई विल गिव यू द परफॉर्मा ऑफ ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट, एंड देन वी विल स्टार्ट विद द सम। तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड जस्ट राइट दिस डाउन एज टू व्हाट इज द फ्लो, कैसे फाइनल अकाउंट तक हम पहुंचते हैं। I have prepared a format for trading account. Since it is a ledger, so this is known as the debit side, this is known as the credit side. Trading account for the year ended, and you will write whichever, what is the date of the trial balance here. Now, in your trial balance, okay, for trading account, we were discussing that he is a sole trader. Trader यानी कौन होता है, जो goods ला के आगे उसको बेचता है, उसको बोलते हैं trader. So for imagine या for explanation purpose we will take that उसके पास एक फैक्ट्री या गोडाउन जैसी जगह है और एक ऑफिस है। फैक्ट्री बोलो, गोडाउन बोलो, वेयरहाउस बोलो, ये कौन सी जगह है जहाँ पे वो अपने गुड्स लाके रखता है, और ऑफिस है यानी जहाँ से वो ऑपरेट करता है। ऐसा जरूर नहीं है कि उसके पास दो अलग अलग, एक ही जगह पे वो कभी-कभी हाफ जगह को ऑफिस जैसे यूज, फैक्ट्री जैसे यूज करते हैं, रिमेनिंग जगह को वो लोग ऑफिस जैसे यूज करते हैं। सो as a trader he will have say a factory, godown and a warehouse and an office. तो जो भी खर्चा वो फैक्ट्री या गोडाउन में करता है वो सब खर्चे ट्रेडिंग में आते हैं। So what expenses will come in trading account? Expenses which are done in factory or godown or warehouse. ये कौन सी जगह है जहाँ पे वो अपने गुड्स रखता है, जहाँ से वो गुड्स खरीदता है, रखता है और फिर आगे बेचता है। तो जिस जगह पे वो अपने गुड्स रखता है उस जगह को हम लोग फैक्ट्री, गोडाउन या वेयरहाउस नाम देंगे। तो जो भी खर्चा, whatever expense is doing for factory or for godown or for warehouse, all expenses will come in trading account. चलो we discuss each and everything. सबसे पहला फैक्ट्री में क्या होता है, गुड्स होते हैं। तो जो भी उसका पिछले साल का, जब उसने ईयर स्टार्ट किया, तो नॉट नेसेसरी ना कि सब गुड्स उसका बिक गया होगा, देयर आर सर्टेन गुड्स जो पड़ा होगा। तो जो भी गुड्स उसके पास ईयर के स्टार्टिंग में था वो गुड्स यहाँ पे लिखेंगे। सो दैट इज टू ओपनिंग स्टॉक एंड द गुड्स। उसके बाद उसने जो भी गुड्स खरीदे
जो भी गुड्स उसने खरीदे बेचने के लिए वो सब गुड्स आएंगे यहाँ पे से टू परचेस, उसमें से जो भी उसने रिटर्न किया वो माइनस करके वी विल राइट इट आउटसाइड। प्लीज रिमेंबर यहाँ पे क्या क्या चीजें आएगी, जो भी फैक्ट्री गोडाउन और वेयरहाउस रिलेटेड है, तो गुड्स कहाँ पे रखते हैं हम लोग, फैक्ट्री में या गोडाउन में या वेयरहाउस में। तो जो फर्स्ट एंट्री हमेशा ओपनिंग स्टॉक होगी, नेक्स्ट होगा टू परचेस। नाउ आई एम राइटिंग ऑल द एक्सपेंसेस, फैक्ट्री रिलेटेड जो भी खर्चे होते हैं उनका नाम होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। मैंने कुछ एग्जांपल लिखे, देयर कैन बी मोर आल्सो। सो all expenses which are related to factory will come here. Now I told you in your question, now we will give you many expenses. You have to think कि भाई ये खर्चा प्रॉफिट एंड ऑफिस का है कि फैक्ट्री का है। अगर फैक्ट्री का है तो ट्रेडिंग में आएगा और ऑफिस का है तो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। So you should know which expenses you have to write in trading and which expenses you have to write in profit and loss. Simple, factory, warehouse या godown related जो भी खर्चा है that will come in trading, remaining will come in प्रॉफिट एंड लॉस। सो आई रिटन हियर फर्स्ट वेजेस। वेजेस यानी जो कि फैक्ट्री में लोग काम करते हैं उनको जो पगार मिलता है उसको बोलते हैं वेजेस। कैरेज इनवर्ड यानी क्या होता है, अभी सब जो गुड्स आए, गुड्स आपके फैक्ट्री में आए, तो जब गुड्स आते हैं ना तो हमको कुछ एक्सपेंसेस पे करने पड़ते हैं। सो कैरेज इनवर्ड आर बेसिकली एक्सपेंसेस पेड फॉर ब्रिंगिंग गुड्स टू योर गोडाउन। सिंस इट इज रिलेटेड टू गुड्स इट विल कम हियर। Next, freight is again expenses which are paid for getting the goods. These are mostly paid, for long travel distances. Factory expense, any expense which you have done for factory. Factory के लिए आपने कुछ भी खर्चा किया है वो सीधा इधर आएगा trading में. All expenses related to factory will come in trading account. It can be factory rent, factory lighting and heating, फैक्ट्री इलेक्ट्रिसिटी, एनी एक्सपेंस जिसके आगे फैक्ट्री वर्ड होगा तो इट विल कम इन ट्रेडिंग अकाउंट। नेक्स्ट आई हैव रिटन लाइटनिंग एंड हीटिंग। नाउ मेनी टाइम्स लाइटनिंग एंड हीटिंग कैसा होता है, फैक्ट्री में या गोडाउन में ना कभी-कभी मशीन्स होती है तो वहां पे आपको इलेक्ट्रिसिटी ज्यादा वोल्ट की लगती है। यू कैन नॉट यूज अ सिंपल और स्मॉल मीटर। घर का जो मीटर होता है फैक्ट्री के इलेक्ट्रिसिटी में फर्क पड़ता है। तो जो हायर इलेक्ट्रिसिटी और हायर कैपेसिटी के लाइटनिंग होती है उसको बोलते हैं लाइटनिंग एंड हीटिंग। नेक्स्ट है कोल, पावर एंड फ्यूल। ये कोल है, फ्यूल है, पावर है, ये सब चीजें कोई ऑफिस में यूज नहीं करता है। ये सब फैक्ट्री में यूज होती है या पैकिंग के लिए या कुछ काम के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट आई हैव रिटन रॉयल्टी। व्हाट इज रॉयल्टी? बेसिकली रॉयल्टी, एक एग्जांपल देता हूं आपको। इंडिया में कंपनी है मारुति एंड सुजुकी। अब जो मारुति है वो इंडियन कंपनी, सुजुकी है वो फॉरेन कंपनी, बट दोनों ने मर्ज होके इंडिया में काम स्टार्ट किया। अभी सुजुकी वाज मच डेवलप्ड इन एडवांस इन टेक्नोलॉजी वाइज। तो सुजुकी ने क्या बोला मारुति को कि मैं तुझे टेक्नोलॉजी दूंगा तो कार्स इंडिया में प्रोडक्शन करने का, उसके बदले में मारुति सुजुकी जो इंडियन है वो सुजुकी को रॉयल्टी पे करती है फॉर गिविंग देम द टेक्नोलॉजी। सो रॉयल्टी इज बेसिकली whatever you pay to your parent company for taking the technology or using their data is known as royalty. So royalty जो भी आप पे करते हो it will come in trading account. Next I have written motive power. Motive power is also a type of an expense which is done in factory. So यहाँ पे मैंने क्या है कुछ expenses mention किए whatever are related with factory. Now on the buy side, जैसे कि मैंने बोला गुड्स आएंगे तो फैक्ट्री में आएंगे, इसलिए हमने इधर लिखा परचेस। तो गुड्स जाएंगे उसको बोलते हैं सेल्स, तो वो मैं लिखूंगा बाय साइड। इन शॉर्ट जो फॉर एनी रीजन जब गुड्स गोडाउन छोड़ के बाहर जाते हैं वो सब वी विल राइट इट हियर। तो पहले मैंने लिखा है सेल्स लेस रिटर्न, यानी आपने समझो कुछ माल बेचा और कुछ खराब निकला और आपको रिटर्न आया तो वो आपको माइनस करने का और बाहर लिखने का। फिर समझो गुड्स लॉस्ट बाय फायर है, थेफ्ट है, कोई भी रीजन की वजह से गुड्स गोडाउन के बाहर गया, चोरी हो गया, आग लग गया, ये सब गुड्स बाहर जाते हैं तो इट विल कम हियर। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, आपने फ्री में एडवर्टाइजमेंट करने के लिए गुड्स बांटे, दैट विल आल्सो कम हियर। गुड्स टेकन फॉर पर्सनल यूज, यानी जो ओनर है उसने अपने पर्सनल यूज के लिए गुड्स गोडाउन दुकान से गुड्स घर पे लेके गया या फैक्ट्री से गुड्स घर पे लेके गए, दैट आल्सो विल कम हियर। सो एनी रीजन फॉर व्हिच गुड्स आर लीविंग द गोडाउन, गुड्स आर लीविंग द फैक्ट्री, गुड्स आर लीविंग वेयरहाउस विल कम हियर। नेक्स्ट मैंने इधर लिखा है बाय क्लोजिंग स्टॉक। तो बाय क्लोजिंग स्टॉक, सिंस ओपनिंग स्टॉक इधर था तो क्लोजिंग स्टॉक यानी लास्ट में एंड ऑफ द ईयर जितना गुड्स उसके पास पड़ा है उसको बोलते हैं क्लोजिंग स्टॉक। नाउ दिस इज अ लेजर, तो लेजर है तो तुमको इसको टैली करके डिफरेंस ढूंढना पड़ेगा। तो जब आप टैली करोगे
और अगर डिफरेंस ये साइड पे आया तो उसको बोलते हैं टू ग्रॉस प्रॉफिट। देखो मैंने लिखा है बैलेंसिंग फिगर, ये ट्रायल बैलेंस में नहीं दिया होगा, दिस यू हैव टू फाइंड आउट। इन दोनों को टैली करेंगे, जो डिफरेंस आएगा दैट इज नोन एज टू ग्रॉस प्रॉफिट, और अगर ये साइड पे डिफरेंस आया तो उसको बोलते हैं बाय ग्रॉस लॉस। सो दिस वाज बेसिकली योर ट्रेडिंग अकाउंट। यू कैन पॉज द वीडियो, प्लीज कॉपी दिस, देन आई विल एक्सप्लेन यू व्हाट इज प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। So I have prepared a format for profit and loss account. So as we were discussing, as a trader, the person will have one, say, factory, and he will also have one office. Okay. So expenses which are related to office will come in profit and loss account. All the expenses which are related to office. So office and factory, two different places. Factory or godown or warehouse is the place where he is keeping goods, and office is from where he is operating. It may happen that both are at the same place. कभी कभी बड़ा सा जगह होता है, उसमें वो लोग हाफ प्लेस ऑफिस जैसा यूज करते हैं, हाफ प्लेस फैक्ट्री जैसे। बट फॉर अस whatever expenses related to office है, जो भी ऑफिस के लिए वो खर्चा करता है, all the expenses will come in profit and loss. So I have written some expenses, there can be much more. So let us discuss that. सबसे फर्स्ट मैंने लिखा है ग्रॉस लॉस ब्रॉट डाउन। सो हमने पढ़ा था कि ट्रेडिंग अकाउंट में लास्ट में डिफरेंस आता है, तो जो ट्रेडिंग अकाउंट का डिफरेंस है दैट विल कम हियर। सो अगर लॉस है तो इट विल कम ऑन दिस साइड, एंड अगर ट्रेडिंग अकाउंट में प्रॉफिट है तो इट विल कम ऑन दिस साइड। तो फर्स्ट स्टेप इज जो भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट है उसका आपको डिफरेंस यहाँ पे लिखना है। नेक्स्ट, दिस इज ऑल एक्सपेंस साइड। सो डेबिट में हम लोग क्या करते हैं, सब एक्सपेंसेस। सबसे पहला लिखा है सैलरी। सैलरी इज व्हाट, ऑफिस में जो लोग काम करते हैं उनको हम सैलरी देते हैं, फैक्ट्री में जो हम लोग काम करते हैं उनको हम लोग वेजेस देते हैं। तो अगर वेजेस आया तो फैक्ट्री में लिखने का दैट इज इन ट्रेडिंग अकाउंट, एंड सैलरी आया तो लिखने का प्रॉफिट एंड लॉस में। समझो आपको सेंटेंस आए ट्रायल बैलेंस में सैलरी एंड वेजेस साथ में लिखा हो, सो इन दैट केस ऑलवेज लुक एट द फर्स्ट वर्ड। अगर सैलरी एंड वेजेस है तो पहला वर्ड क्या है, सैलरी है, तो फैक्ट्री प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा। समझो वेजेस एंड सैलरी लिखा है, वेजेस एंड सैलरी लिखा है ट्रायल बैलेंस में, तो फर्स्ट वर्ड क्या है, वेजेस है, तो वो जाएगा फैक्ट्री में। सो अगर दोनों साथ में लिखे तो ऐसा आधा आधा मत करना, फर्स्ट वर्ड देखना, जो भी फर्स्ट वर्ड है उसके हिसाब से डालना। सो यू आर नेक्स्ट यू आर सैलरी, देन आई हैव रिटन ऑफिस एक्सपेंसेस। तो ऑल एक्सपेंसेस उधर कैसे लिखा था, फैक्ट्री एक्सपेंसेस ट्रेडिंग में, वैसे यहाँ पे क्या लिखा है, ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑल एक्सपेंसेस व्हिच आर रिलेटेड टू ऑफिस विल कम हियर। फॉर एग्जांपल हमने पेटी कैश बुक पढ़ा, इन पेटी कैश बुक जो भी हेडिंग्स होती थी ना एक्सपेंसेस की, ऑल दोस हेडिंग्स विल कम हियर। पेटी कैश बुक में जो पेटी एक्सपेंसेस की हेडिंग होती थी वो सब हेडिंग्स यहाँ पे है। फिर मैंने लिखा है टू कमीशन एंड डिस्काउंट। नॉर्मली कमीशन डिस्काउंट किस पे मिलता है, जब हम लोग गुड्स बेचते हैं तब। तो अभी हम लोग सर गुड्स बेचते हैं तो हम लोग ने तो फैक्ट्री में लिखा था, तो गुड्स जब गोडाउन से जाता है वो पार्ट फैक्ट्री में लिखने का, और गुड्स जब बेचा उसके ऊपर या तो तुमने किसी को कमीशन दिया होगा या किसी ने तुमको पेमेंट किया होगा, इसलिए तुमने उसको डिस्काउंट दिया होगा, तो दीज आर रिलेटेड टू ऑफिस, हेंस इट विल कम हियर। नेक्स्ट है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, जो प्रिंटिंग के लिए खर्चा होता है वो सब इधर। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्या होता है, देयर इज अ प्रॉपर चैप्टर यू हैव। डेप्रिसिएशन मींस जब एसेट का वैल्यू कम हो जाता है, यू आर यूजिंग सर्टेन एसेट और उसकी वैल्यू अगर कम हो जाती है तो वो जितना लॉस होता है दैट यू हैव टू राइट हियर। सो नाउ सम स्टूडेंट में इवन से सर फैक्ट्री में जो एसेट्स है उसका अगर डेप्रिसिएशन होगा तो, बट फॉर 11 मतलब फॉर सोल ट्रेडिंग कंसर्न, whatever depreciation are there, all depreciation will come in profit and loss account. When you go in higher standards, that time अलग-अलग चीजों का depreciation अलग-अलग अकाउंट में डालते हैं. But at present, in case of sole trading person, जितना भी depreciation है, all depreciation will come in profit and loss account. Trading में कोई भी depreciation नहीं जाए. Next, advertisement. तुमने सेल बढ़ाने के लिए advertisement किया, पैम्पलेट छापे, advertise किया, बैनर्स लगाए. तो जितना आप खर्चा करते हो सेल को बढ़ाने के लिए, जितना आप खर्चा करते हो सेल को इंक्रीज करने के लिए, all those expenses will come in profit and loss account. To trade expense, मैंने इसको स्टार किया है. क्यों स्टार किया है? ये ट्रेड एक्सपेंस ट्रेडिंग में भी आ सकता है और ट्रेड एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में भी आ सकता है. अब कब उसको कहाँ लिखने का, लेट अस डिस्कस दैट. समझो ट्रायल बैलेंस में ओनली ट्रेड एक्सपेंसेस गिवन. ओनली ट्रेड एक्सपेंस मींस दूसरा कोई भी एक्सपेंस वर्ड नहीं है पूरे लिस्ट में, खाली ट्रेड एक्सपेंस वर्ड है. अगर ट्रेड एक्सपेंस अकेला है, अगर ट्रेड एक्सपेंस अकेला है, इफ ट्रेड एक्सपेंस इज अलोन इन द ट्रायल बैलेंस,
trade expense will come in profit and loss account. So I am writing it here. If trade expense is alone in trial balance. What do I mean by the word alone? Alone मतलब अकेला, दूसरा कोई expense word नहीं होना चाहिए, दूसरा कोई expense word नहीं होना चाहिए. If it is alone, it will come in profit and loss account. और अगर समझो आपके ट्रायल बैलेंस में एग्जांपल ट्रेड एक्सपेंस वर्ड है और सिर्फ और एक एक्सपेंस वर्ड है, से जनरल एक्सपेंस वर्ड है, यानी एक्सपेंस वर्ड की बात करो. अगर आपके ट्रायल बैलेंस में दो एक्सपेंस वर्ड है तो ट्रेड एक्सपेंस जाएगा ट्रेडिंग में और जो दूसरा है वो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. सो इसके लिए मैंने उसको स्टार्ट किया. ट्रेड एक्सपेंस ट्रेडिंग में भी आ सकता है, ट्रेड एक्सपेंस प्रॉफिट एंड लॉस में भी आ सकता है. अगर अकेला है, कोई एक्सपेंस वर्ड नहीं है, अकेला है, इट विल कम इन प्रॉफिट एंड लॉस. और ट्रेड एक्सपेंस के साथ कोई और भी एक्सपेंस वर्ड है जैसे कि जनरल एक्सपेंस, तो जो दूसरा वाला है जनरल एक्सपेंस वो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस में, ट्रेड एक्सपेंस जाएगा ट्रेडिंग. नेक्स्ट लिखा है मैंने लॉस बाय फायर एंड थेफ्ट. अभी सब स्टूडेंट ने सर ये तो आपने ट्रेडिंग के बाय में भी लिखा था, है ना, गुड्स बाहर गया. यस करेक्ट. तो देयर आर सर्टेन आइटम्स which will come at two places. These are known as adjustments. क्या तो ये क्या हो गया, एक टाइप का एडजस्टमेंट हो गया. ये मैं जब एडजस्टमेंट करूंगा तब मैं डिस्कस करूंगा. बट समटाइम्स सर्टेन एक्सपेंसेस आर देयर जो हम कोई दूसरे लेजर में भी लिखते हैं और यहाँ पे भी लिखते हैं. सो इफ एन एंट्री इज कमिंग एट टू प्लेसेस, ट्रेडिंग में आ रहा है या प्रॉफिट एंड लॉस में आ रहा है या ट्रेडिंग और बैलेंस शीट में आ रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट में आ रहा है, दोस आर नोन एज एडजस्टमेंट. सो दिस इज वन टाइप ऑफ एडजस्टमेंट. गुड्स बाहर गया इसके लिए ट्रेडिंग में लिखा, पर गुड्स बाहर गया तुम्हारा नुकसान हुआ ना, तो ऑल एक्सपेंसेस यहाँ पे लिखने होते हैं. सो दिस इज नॉर्मली व्हाट साइड एक्सपेंसेस, ऑफिस के जो भी खर्चे होते हैं दैट वी विल राइट हियर. नेक्स्ट है इलेक्ट्रिसिटी. वहां पे हमने क्या किया था, लाइटनिंग एंड हीटिंग, पावर एंड फ्यूल ऐसे वर्ड यूज किए थे ट्रेडिंग में, पर ऑफिस में इलेक्ट्रिसिटी वर्ड. नेक्स्ट ऑडिट फीस. ऑडिट फीस इज व्हाट द फीस व्हिच यू पे टू अ सीए टू ऑडिट योर अकाउंट्स, टू चेक योर अकाउंट्स, उसको बोलते हैं ऑडिट फीस. दिस इज रॉन्ग. इट शुड बी कैरेज आउटवर्ड. कैरेज इनवर्ड किधर आता है, कैरेज इनवर्ड आता है ट्रेडिंग अकाउंट में, और ये क्या है, कैरेज आउटवर्ड. आउटवर्ड यानी गुड्स गया. तो जब सेल्स रिलेटेड आप जो भी एक्सपेंस करते हो, सेल्स के लिए, सेल्स को बढ़ाने के लिए या सेल्स करने के लिए आपने जो भी खर्चा किया, डिलीवरी किया, एडवर्टाइज किया, वो सारे खर्चे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आते हैं. तो कैरेज आउटवर्ड क्या है, गुड्स बाहर गए तो तुमने गाड़ी भाड़ा भरा गुड्स को डिलीवर करने के लिए, वो सब खर्चा प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा. नेक्स्ट है बैड डेट्स. बैड डेट्स यानी वो पैसा जो आपका डूब गया, जो आपने किसी को माल दिया है और वो सामने वाला आपको पेमेंट नहीं कर रहा है, उस जो अमाउंट होता है उसको बोलते हैं बैड डेट्स. मैंने उसको स्टार्ट किया है, एक्सप्लेन बैड डेट्स का एक टेबल है पूरा, बट लेट मी एक्सप्लेन दिस एंड देन आई विल एक्सप्लेन व्हाट इट इज. नेक्स्ट लिखा है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी. ये भी एक एक्सपेंस है. रेंट, रेट्स, टैक्सेस. अभी देखो यहाँ पे भी रेंट है और फैक्ट्री में भी रेंट आता है, बट फैक्ट्री में क्लियरली फैक्ट्री रेंट लिखा होगा तो ही लिखने का फैक्ट्री में, नहीं तो सब कहाँ पे लिखने का, प्रॉफिट एंड लॉस. There are certain expenses which may come in profit and loss and which may even come in trading account. But अगर ट्रेडिंग में आएगा तो फैक्ट्री वर्ड होगा. फैक्ट्री वर्ड होगा तो ट्रेडिंग में डालना, कुछ नहीं बोला है तो प्रॉफिट एंड लॉस में डालना. ये रेंट ऐसा है जो इधर भी आ सकता है और फैक्ट्री में भी आता है, ट्रेडिंग में भी आता है. पर ट्रेडिंग में उसके आगे फैक्ट्री रेंट वर्ड होगा. क्या लिखा होगा, फैक्ट्री रेंट. और खाली रेंट लिखा है तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. टू इंटरेस्ट, जो इंटरेस्ट आपने कोई लोन लिया और आप इंटरेस्ट पे करते हो तो उसके लिए इंटरेस्ट है. फिर आता है इंश्योरेंस पे करते हैं प्रीमियम, वो भी इधर आएगा, वो भी फैक्ट्री के खर्चे होते हैं. ओके. अभी अगर फैक्ट्री इंश्योरेंस वर्ड है, फैक्ट्री इंश्योरेंस वर्ड है तो वो आएगा ट्रेडिंग में, और खाली इंश्योरेंस वर्ड है तो वो आएगा प्रॉफिट एंड लॉस. नाउ ऑन द बाय साइड दीस आर ऑल इनकम. यानी एक ऑफिस में जो भी पैसा आता है अदर देन सेल, यानी सेल छोड़ के बाकी जो भी तरीके से आपने पैसे कमाए, मनी इज कमिंग इन द बिजनेस अदर देन सेल, ऑल दोस रीजन विल कम इन. सो डिस्काउंट रिसीव्ड. नाउ You must have purchased goods from somebody, तो तुमको भी डिस्काउंट मिला होगा. यहाँ पे कैसा तुमने लिखा था डिस्काउंट. This is what discount allow. तुम किसको डिस्काउंट दे रहे हो, जैसे तुमको भी डिस्काउंट मिला होगा, तुमको भी कमीशन मिला होगा, तुमको भी रेंट मिला होगा, तुमको डिविडेंड मिला होगा. So whatever income you get other than sale, everything will come on the buy side. So again, this debit side is nothing else but all
ऑफिस के expenses, and this side is what? Incomes, office incomes other than sale. So this was your profit and loss account. फिर इसको भी आपको टैली करना है. Once you tally, you get a difference on both the sides. समझो this side is more, यानी इनकम ज्यादा और एक्सपेंस ज्यादा है, तो जो डिफरेंस होगा उसको बोलते हैं हम लोग टू नेट प्रॉफिट कैरीड फॉरवर्ड. और अगर समझो एक्सपेंस ज्यादा है और इनकम कम है, तो यहाँ पे डिफरेंस आएगा, उसको बोलते हैं टू नेट लॉस कैरीड फॉरवर्ड. मैं लिख देता हूँ, इट इज बैलेंसिंग फिगर. सो यू हैव टू फाइंड दिस फिगर. जिधर भी बैलेंसिंग वर्ड होगा वो तुमको ढूंढना पड़ेगा. इट इज नॉट गिवन इन द ट्रायल. सो इसके नीचे भी लिखा बैलेंसिंग फिगर, इसके नीचे भी लिखा बैलेंसिंग फिगर. सो दिस वाज योर फॉर्मेट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट. आई हैव रिटन सम फ्यू एक्सपेंसेस. ऐसे बहुत सारे एक्सपेंसेस हैं, तो जब आपको लिस्ट देगी, आपको यू शुड able to be recognized it. फैक्ट्री का एक्सपेंस है तो ट्रेडिंग में जाएगा, ऑफिस का एक्सपेंस है तो प्रॉफिट एंड लॉस में आएगा. सो एज एंड व्हेन वी डू सम्स इन दैट वी विल डिस्कस ईच एंड एवरी एक्सपेंस. तो थोड़े सम्स करके आपको याद आ जाएगा कि फैक्ट्री का है कि ऑफिस का. अच्छा, अभी ये कि बैड डेब्ट्स का एक मैंने छोटा सा कैलकुलेशन बताया, वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं. नॉर्मली बैड डेब्ट्स क्या होता है, आप बिजनेस कर रहे हैं तो ऐसा बहुत बार होता है कि आपने किसी को गुड्स दिए, सम पीपल आर नॉट एबल टू पे योर मनी बैक. आपको पैसा वापस से नहीं आता है. जो पैसा आपका डूब गया उसको बोलते हैं बैड डेब्ट्स. वो मैंने इधर लिखा. समझो ट्रायल बैलेंस बन गया, और जब आप अकाउंट्स फाइनल अकाउंट कर रहे हो, उस टाइम पे आपको बाद में याद आता है, अरे और एक जने उसका पैसा डूब गया पर मैं लिखना भूल गया. यानी बैड डेब्ट्स मींस क्या, जो पैसा डूब गया और आपने उसको जर्नल एंट्री में डाल दिया. देन यू रिमेंबर दैट अरे और भी कुछ ऐसे एक इंसान का नाम है जो पैसा नहीं देने वाला है, पर मैंने उसका लिखना भूल गया. सो आफ्टर प्रिपेयरिंग ट्रायल बैलेंस, अगर आपको ऐसा कुछ बैड डेब्ट्स याद आता है, उसको बोलते हैं फर्दर रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, या फर्दर बैड डेब्ट्स भी बोलते हैं. ठीक है. सो बैड डेब्ट्स इज व्हाट अमाउंट, दैट अमाउंट व्हिच इज ऑलरेडी not, you will not receive and you have already entered into the accounts. Further bad debts are those amounts which already you will not receive but you forgot to write and now you write. What is new reserve for doubtful debts? Every business accounts में एक पॉलिसी है कि every business है ना, उसको पता होता है कि मेरा 1 या 2% पैसा हमेशा डूबता ही है. So accounts में एक रूल है कि अगर आपको लग रहा है, if you feel that you are going to occur a loss, please mention it before only. So new reserve for doubtful debts are those amount which on a percentage basis you feel that आपका इतना पैसा आने वाला नहीं है. एंड लास्ट में दिया ओल्ड रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स, और ये सबट्रैक्शन है. पिछले साल समझो आपने कुछ रिजर्व क्रिएट किया होगा, उतना पैसा आपका डूबा नहीं. एवरी ईयर यू क्रिएट न्यू रिजर्व, और उसमें से समझो कुछ पैसा आपका डूबा नहीं. सो जो पिछले साल का रिजर्व बचा है, दैट वी विल सबट्रैक्ट इट. दिस इज द एंटायर टेबल. एक्चुअली दिस टेबल शुड बी मेड हियर, पर यहाँ पे स्पेस कम होती है, इसलिए मैंने खाली टू बैड डेब्ट्स लिखा. तो आपको ये टेबल पूरा इधर बनाने का है. Bad debts and ORED, ये जो तो फर्स्ट और लास्ट है, this will be given on the trial balance debit side and ये होगा trial balance credit side. और ये बीच में के दोनों हो गए एडजस्टमेंट में. तो जब मैं एडजस्टमेंट करूंगा तब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ये चीजें किधर किधर रहती है. तो अभी एक्सप्लेनेशन के लिए, so you can pause the video and copy this format. इसके बाद मैं आपको बैलेंस शीट का फॉर्मेट बताता हूँ. Okay, so now here I have prepared the format of balance sheet. Balance sheet as on. If you remember in trading account and profit and loss account, we had mentioned trading account for the year ended, profit and loss account for the year ended. It means it is for the full year. But balance sheet is not for the full year. Balance sheet is on a particular date. Hence we have written balance sheet as on. As on उस दिन को. एक दिन पहले एक दिन बाद फिगर्स चेंज हो सकते हैं. उस दिन बैलेंस शीट का ये फिगर था. दैट इज नॉट अ बैलेंस शीट एज ऑन. हियर वी राइट द डेट. आल्सो रिमेंबर दिस इज नॉट अ लेजर, इट इज अ स्टेटमेंट. बैलेंस शीट इज अ statement. Trading account and profit and loss account was ledgers, accounts, but this is a statement.
It is a statement. Okay, so balance sheet has two parts, liabilities and asset. Liabilities का मतलब क्या है? उस दिन यानी समझो हमें 31 मार्च 2020 को बैलेंस शीट बनाना है, 31/3/2020। तो 31/3 को मुझे क्या क्या किसी को चुकाना बाकी है एज अ बिजनेस। हाँ, मेरी क्या लाइबिलिटीज है, यानी एज अ बिजनेस व्हाट आई ओ अदर्स। एज अ बिजनेस मुझे क्या क्या किसी को चुकाना बाकी है एज अ बिजनेस, नॉट एज एन ओनर, एज अ बिजनेस। Entire accounts is done from the point of view of business and not from the point of view of owner. Owner and business, while accounts are two different things, we do accounts from the point of view of business. So 31st मार्च को एज अ बिजनेस तुम्हारा क्या क्या लाइबिलिटी है, तुमको क्या क्या किसी को चुकाना है, वो सब ये साइड पे आएगा। So whatever you are liable to pay to others as a business will come on the liability side. And assets means जो जो तुम्हारे पास है, जो चीज तुम बेच के तुमको पैसा मिल सकता है, जो तुम्हारी प्रॉपर्टीज है, वो सब चीजें एसेट्स में आएंगी एज अ बिजनेस। So now let us discuss each and everything on the liability side. This entire will come together and always this should be written first only. तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा है? I have written capital. So capital is what? जो ओनर ने बिजनेस में पैसा डाला है उसको कैपिटल बोलते हैं। तो बिजनेस का फर्ज बनता है ना कि उतना पैसा वापस से ओनर को रिटर्न देने का। सो एज अ कैपिटल जो भी पैसा बिजनेस में आया, दैट इज द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस टू पे बैक टू द ओनर, हेंस आई हैव रिटन इट हियर। अब उस कैपिटल में कुछ चीजें ऐड होती है, कुछ चीजें सब्ट्रैक्ट होती है, लेट अस सी। सो ड्राइंग्स क्या होता है? जो ओनर बिजनेस से पर्सनल यूज के लिए लेके जाता है वो ड्राइंग्स हो गया। तो वो ओनर की लाइफ, ओनर का फर्ज बनता है कि वो बिजनेस को वापस देने का। तो बिजनेस क्या करता है? बिजनेस को जो ओनर को देना है उसमें से जो ओनर पर्सनल यूज के लिए लेके गया है वो सब्ट्रैक्ट करने का। सो ड्राइंग्स आर सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम कैपिटल। ओके, समझो बिजनेस में प्रॉफिट हुआ तो दैट प्रॉफिट बिजनेस को ओनर को देना चाहिए, तो इसमें ऐड होगा। और अगर लॉस हुआ तो ओनर के कैपिटल में से इतना माइनस होगा। सो ये फिगर्स कहां से आते हैं? दिस फिगर्स वी गेट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके पहले हमने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट सीखा था। व्हेन वी टैली देम लास्ट में अपने को बैलेंस आते हैं। If it is profit, we will add here. If it is loss, it will subtract. Notice this. First, we are making trading account. Trading account से हमको क्या मिलता है? Gross profit या तो loss. This will go into profit and loss account. Profit and loss account से अपने को क्या मिलता है? Net profit या तो loss. This will go into capital account and it will either get added or subtracted. See, सबसे पहले we make trading account. Trading account से हमको क्या मिलता है? Gross profit या loss, वो जाता है profit and loss में। फिर profit and loss हम लोग टैली करते हैं, उसमें से अपने को मिलता है net profit या loss, वो जाता है capital में। देखो यहाँ। Okay, next है interest on capital. Interest on capital means owner has given some money to the business. सीधी बात है, when we give money to somebody else, we charge interest on that. So the total amount which owner has given to the business का फर्ज बनता है कि उतना पैसा रिटर्न दो। अगर उतना पैसा रिटर्न नहीं दे सकते तो एटलीस्ट उसके ऊपर इंटरेस्ट दो, तो दैट इंटरेस्ट शुड बी एडेड। एंड अगर ओनर ने बिजनेस में से कुछ लिया है तो ओनर का फर्ज बनता है कि बिजनेस को इतना पैसा रिटर्न देने का, दैट इज द ड्राइंग। एंड इफ यू कैन नॉट गिव द ड्राइंग, एटलीस्ट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो दैट शुड बी सब्ट्रैक्टेड। तो दिस इज द एंटायर कैलकुलेशन। तो सबसे पहले कैपिटल शुड बी रिटन इन द इनर कॉलम। ऑल दिस कैलकुलेशन एंड फाइनल आंसर विल कम आउटसाइड। Now next thing in liability is sundry creditors. Sundry creditors कौन होता है? जिन लोगों से हमने माल उधार लिया है बिजनेस के लिए। इन बिजनेस क्या ऐसा होता है, हम कुछ लोगों को माल बेचते भी हैं, कुछ लोगों से माल लेते भी है उधार पे। तो जिन लोगों से हमने उधार पे लिया है, हमारा फर्ज बनता है वी आर लायबल टू पे देम बैक दैट मनी। तो वो जो लोग हैं जिनसे हमने उधार पे लिया, उस लोगों की लिस्ट को बोलते हैं सन्ड्री क्रेडिटर्स। यानी एक इंसान नहीं, इसमें बहुत सारे लोगों का नाम होगा, बट टुगेदर हमने एक साथ में लिखा है सन्ड्री क्रेडिटर्स आर दोस पीपल टू हुम वी ओ मनी। हमको उनको पैसा देना बाकी है। बैंक लोन सिंपल है, तुमने बैंक से लोन लिया होगा तो तुमको बैंक को लोन वापस से देना बाकी है, तो दैट वी हैव रिटन इन लायबिलिटी साइड। बैंक ओवरड्राफ्ट किसको मिलता है? जो बिजनेसमैन होता है ना, उनका करंट अकाउंट होता है। सो कभी-कभी करंट अकाउंट होल्डर्स को, जैसे कि सेविंग अकाउंट होता है, करंट अकाउंट, तो बिजनेस के लिए नॉर्मली पीपल यूज करंट अकाउंट। करंट अकाउंट होल्डर्स कभी-कभी उनके पास पैसों की कभी तंगी होती है, तो व्हाट दे डू, दे रिक्वेस्ट देयर बैंक दैट समझो हमारे पास अगर कम पैसे हुए तो प्लीज allow us to use extra money from your side। तो बैंक allows them to use some extra amount
more than their amount in their current account. For example, समझो उनके अकाउंट में 50,000 ही है, बिजनेस के अकाउंट में 50,000 है, और अगर कोई चेक आया 70,000 का, अभी 50,000 है तो 70,000 का चेक क्लियर कैसे होगा? पर बैंक क्या करता है कि 70,000 का चेक क्लियर करेगा, पर आपका अकाउंट हो जाएगा -20,000, आपके पास से 50,000। आपको चेक आया, मतलब आपने किसी को चेक इशू किया था, वो क्लियरिंग के लिए आया 70,000 का, तो आपके पास 20,000 कम है, तो बैंक क्या करता है, उसको क्लियर करता है और आपका अकाउंट -20,000 कर देता है। उस -20,000 को बोलते हैं ओवरड्राफ्ट। तो अगर ओवरड्राफ्ट है तो आपको बैंक को वापस से पैसा चुकाना है। बिल्स पेबल क्या होते हैं? क्रेडिटर्स who have, there is an instrument, हिंदी में उसको बोलते हैं हुंडी, इंग्लिश में बिल रिसीवेबल और बिल पेबल। तो कुछ लोग क्या करते हैं, जो क्रेडिटर्स होते हैं, दे साइन ऑन द बिल ऑफ एक्सचेंज। तो जो बिल्स ऑफ एक्सचेंज पे हमने साइन किया है, हमने जिस बिल ऑफ एक्सचेंज पे साइन किया है, यानी हमको किसी को पैसा देना बाकी है, उसको बोलते हैं बिल्स पेबल, और किसी ने हमको साइन करके दिया है, उसको बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। ओके, हमने जिस बिल पे साइन करके किसी को दिया है, दैट इज नोन एज बिल्स पेबल। So creditors are those people to whom we are liable to pay. उसमें से अगर किसी ने हमारा बिल पे साइन किया है तो क्रेडिटर पे से उसका नाम निकाल देंगे और बिल के बाजू में उसका नाम लिखेंगे। Outstanding expenses which you have not yet paid but you are liable to pay. यानी समझा आपको किसी का पगार चुकाना बाकी है, आपको कोई इलेक्ट्रिसिटी का बिल चुकाना बाकी है, आपको कुछ खर्चे चुकाने बाकी है, तो वो सब खर्चे जो आपके अकाउंटिंग ईयर के थे, नॉर्मली वन अकाउंटिंग ईयर इज फॉर 12 मंथ्स, तो उस अकाउंटिंग ईयर का खर्चा आपने अब तक किसी को चुकाया नहीं है, तो वो इधर आएगा, क्योंकि अकाउंट्स क्या बोलता है, एक साल का खर्चा अकाउंट्स में आना चाहिए, भले आपने चुकाया हो या चुकाना बाकी है। जनरल रिजर्व यानी आपने कुछ फंड इमरजेंसी के लिए रखा है, रिजर्व फंड इज सेव। सो ऑल टाइप्स ऑफ रिजर्व्स व्हिच यू हैव केप्ट असाइड फॉर सम कंटिजेंसी, फॉर सम पर्पस इज लायबिलिटी। सो बेसिकली दीस आर द थिंग्स लायबिलिटी व्हिच बिजनेस ओ आउटसाइडर्स। अभी असेट्स यानी प्रॉपर्टीज, यानी जिस चीज को बेच के बिजनेस को पैसे आ सकते हैं। सो इनिशियली आई हैव रिटन सम फिक्स्ड असेट्स, फॉर एग्जांपल लैंड एंड बिल्डिंग, बिजनेस की जो प्रीमाइसेस है, जो जगह है, जो बिल्डिंग है, वो बिजनेस बेचेगा तो उसको पैसा आएगा ना, इसके लिए दैट इज एन असेट। नेक्स्ट प्लांट एंड मशीनरी यानी ऑल द टाइप्स ऑफ मशीनरी व्हिच आर केप्ट इन द बिजनेस, ऑल टाइप्स ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स, जो बड़ी-बड़ी मशीनरी असेंबली होती है, उन सबको बोलते हैं प्लांट एंड मशीनरी। Now I have done one calculation here. Plant and machinery में से depreciation minus किया। If you remember this depreciation, profit and loss में भी आया था। It has come at two places. Anything which comes at two places is known as an adjustment. जब adjustment करूँगा तब मैं explain करूँगा। तो depreciation land में भी हो सकता है, furniture में भी हो सकता है, some assets में होता है, fixed assets में। But मैंने खाली एक asset का ही लिखा है, बाकी सब के लिए नहीं लिखा है, पर it can come for any asset. Okay. So furniture भी assets हो गया। गुडविल एक टाइप का एसेट है, पर इट इज एन इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल यानी जिसको तुम टच नहीं कर सकते। गुडविल क्या होता है? रेपुटेशन होता है। समझो कोई चीज है जो 1000 में भी मिलती है और वैसा ही चीज 1500 में मिलती है। व्हाई पीपल आर रेडी टू पे मोर मनी? बिकॉज़ ऑफ दैट ब्रांड नेम गुडविल, क्योंकि वो क्वालिटी अच्छा है या नाम अच्छा है। अभी फॉर एग्जांपल अपने कंट्री में मोबाइल फोन ले लो। मोबाइल फोन आर अवेलेबल फ्रॉम इवन फॉर 6 7 10,000 रुपीस अप टू गोस टू 60 70,000 रुपीस। Why are people ready to pay such a higher amount? Because of the goodwill name of that company and also because of the quality. Premises, leasehold premises यानी सेम जगह। leasehold यानी क्या? Many times business क्या करती है, लॉन्ग टर्म के लिए 5 साल 7 साल के लिए कोई जगह भाड़े पे लेती है, ज्यादा टाइम के लिए, उसको बोलते हैं leasehold premises. Sundry debtors are those people who will pay us money. It is exactly opposite of creditors. Creditors कौन होते हैं? जिसको हमको चुकाना बाकी है। Debtors वो है जिसको हमने उधार पे माल बेचा है और उनको अपने को चुकाना बाकी है, तो अपने को पैसा आने वाले है, इसके लिए डेटर। Okay. Next is cash in hand and cash in bank. They themselves are assets. इसके लिए कैश, हम लोग ने ऊपर क्या लिखा था कि जो भी चीज हमको बेच के पैसा आ सकता है उसको हम एसेट में लेते हैं, तो खुद पैसा है। So money itself is an asset. नेक्स्ट हमने लिखा है बिल्स रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल क्या होता है? देयर आर सर्टेन पीपल हु ओव अस मनी, उनका नाम है सन्ड्री डेटर्स। समझो उस लिस्ट में से कोई जन हमको बिल पे साइन करके देता है, तो उनका नाम हम लोग यहाँ से निकाल के यहाँ पे लिखते हैं। बिल रिसीवेबल इज एन इंस्ट्रूमेंट, 12th स्टैंडर्ड में ये आपको आने वाला है। सो बिल रिसीवेबल नथिंग एल्स बट एक बिल पे वो साइन करके देता है कि हाँ ही ओव्स मी मनी, इट इज अ रिकॉर्ड।
पेटेंट कॉपीराइट अगेन दिस बोथ आर इंटेंजिबल एसेट्स. पेटेंट एंड कॉपीराइट ये दोनों क्या है? इंटेंजिबल एसेट्स है. बिजनेस है, सब बिजनेस के पास समझो कोई पेटेंट है या कोई कॉपीराइट है. लूज टूल मतलब ऑफिस या फैक्ट्री या बिजनेस में जो छोटे मोटे इंस्ट्रूमेंट्स पड़े होते हैं, छोटी मोटी चीजें पड़ी होती है, दैट इज नोन एज लूज टूल्स. प्रीपेड एक्सपेंस क्या होता है? कुछ खर्चा जो तुमने एडवांस में पे किया. एग्जैक्टली ऑपोजिट ऑफ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस. आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस मतलब खर्चा चुकाना बाकी है, और प्रीपेड एक्सपेंस मतलब तुमने खर्चा पहले पे कर दिया, नेक्स्ट ईयर का खर्चा एडवांस में पे कर दिया, हेंस इट इज एन एसेट फॉर यू. नेक्स्ट क्लोजिंग स्टॉक. क्लोजिंग स्टॉक क्या होता है? जो अभी आप बोलोगे सर क्लोजिंग स्टॉक तो हमने ट्रेडिंग के बाय में भी लिखा था. तो ट्रेडिंग के बाय में भी क्लोजिंग स्टॉक आया और असेट्स में भी क्लोजिंग स्टॉक आया. इट केम एट टू प्लेसेस. एनीथिंग व्हिच कम्स एट टू प्लेसेस इज नोन एज व्हाट? इट इज नोन एज एन एडजस्टमेंट. जब आएगा तब बताऊंगा. पर जो आपके पास क्लोजिंग स्टॉक है वो आप बेचोगे तो उसका भी आपको पैसा मिल सकता है, हेंस इट इज रिटन एज क्लोजिंग स्टॉक. आफ्टर डूइंग ऑल दिस हमको दोनों साइड का टोटल करना है, और दोनों साइड का टोटल शुड कम एग्जैक्टली द सेम. बोथ टोटल शुड मैच एंड बोथ टोटल शुड कम सेम. इफ बोथ टोटल आर सेम then your sum is correct and the sum is over at this. Please pause the video and copy this, then I will start with another sum. So let us start with the sum. What I have done is I have made a trial balance here. Adjustments I am not giving. First sum will just do trial balance and how to post them into the accounts. Already I have drawn here trading account, profit and loss account and balance sheet. Two ledgers and one statement already I have drawn, and here I have written the trial balance. Next sum onwards we will not write the trial balance, we will take the sums from the textbooks. But now for the first sum I have prepared the trial balance, so you come to know how to do the posting. Your question will be this is your question in exam. Along with this some adjustments will be given to you, but now we are doing only trial balance. So your basic object is what now? Each of this item you have to pick up and select an appropriate place where to write. So here we have trading account debit side, trading account credit side, profit and loss account debit side, profit and loss account credit side, balance sheet liability side, balance sheet asset side. What I have written up, I will just read. When I am solving, I will show you this part also. So here I have written trading account for the year ended and the date of the trial balance. So what is the date of our trial balance? Is 31st 3/2020. Here I have written balance sheet as on, again it will be 31st 3/2020, and profit and loss account for the year ended 31st 3/2020. So three places I have to write the date. This is balance sheet as on. Okay, so first we'll do, I'll explain this part, and then when I'm solving this part, I will turn the screen this way. Okay, now this trial balance is given to you. Let us read the item and find out where it will come. If it comes in trading account, I will mention the word T. If it comes in profit and loss account, I will mention the word P. If it comes in asset side, I will mention the word trial balance is given. I will write those where it will come. First is given plant and machinery 80,000. Plant क्या है? प्लांट बेचोगे तो आपको पैसा मिलेगा. प्लांट एंड मशीनरी यानी जो इंस्ट्रूमेंट्स, जो मशीन आपने अपने फैक्ट्री में या गोडाउन में या वर्क प्लेस में लगाई है. सो दिस इज नथिंग एल्स बट एन असेट. तो मैं ए लिख देता हूँ. ओपनिंग स्टॉक हमने क्या पढ़ा था? स्टॉक रिलेटेड, ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक रिलेटेड जो भी चीज होती है वो फैक्ट्री में होती है. फैक्ट्री में आएगा तो इट विल बी टर्म्ड एज ट्रेडिंग. परचेज एंड सेल. परचेज करते हैं तो माल कहाँ पे रखते हैं? फैक्ट्री में. सेल करते हैं तो माल कहाँ से जाता है? फैक्ट्री से या गोडाउन से या वर्कशॉप से. तो फैक्ट्री रिलेटेड कुछ भी होगा, गोडाउन रिलेटेड कुछ भी होगा, तो इट विल कम इन ट्रेडिंग अकाउंट. ये दोनों चीजें आएगी ट्रेडिंग. परचेज और सेल लिखा है, दो अमाउंट है, तो ये वाला परचेज है और ये वाला सेल है, ऐसे होता है. फर्नीचर लिखा है 1 लाख. फर्नीचर अगेन इज एन एसेट. अगर आप फर्नीचर बेचोगे तो आपको पैसा मिलने वाला है. ये आपकी प्रॉपर्टी है, जायदाद है. तो जो भी प्रॉपर्टी होता है बिजनेस का असेट. वेजेस किसको पे करते हैं हम? जो फैक्ट्री में काम करता है उसको वेजेस पे करते हैं. जो ऑफिस में काम करता है उसको सैलरी. फैक्ट्री का खर्चा, जो भी फैक्ट्री का खर्चा होगा इट विल गो वेयर? इट विल गो इनटू ट्रेडिंग अकाउंट्स. वेजेस विल गो वेयर? ट्रेडिंग अकाउंट. अभी सैलरी है, सैलरी विल गो वेयर? सैलरी विल गो इनटू
प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, इट इज एन एक्सपेंस। किसका एक्सपेंस है? ऑफिस का। तो जो भी ऑफिस का खर्चा है वो किधर जाता है? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैड डेट्स अगेन रिलेटेड टू व्हाट? जो तुमने माल बेचा और तुमको पैसा नहीं आ रहा है, तुम्हारा नुकसान है, नुकसान खर्चा सब कहां पे जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस में। डेटर्स कौन है? डेटर्स वो लोग हैं जो तुमको पैसा देने वाले हैं, तुमने उनको माल उधार पे बेचा और तुमको पैसा मिलने वाला है। तो जिस भी चीज से तुमको पैसा मिलने वाला है दैट इज एन असेट। असेट। क्रेडिटर्स वो लोग हैं जिनको तुमको पैसा चुकाना बाकी है। 31 मार्च को तुमको इतने दिन को पैसा चुकाना बाकी है, चुकाना बाकी है, इट इज अ लायबिलिटी, एंड लायबिलिटी एन। अगेन कैपिटल क्या है? कैपिटल इज आल्सो लायबिलिटी। बिजनेस हैज टू पे मनी टू द ओनर, बिजनेस हैज टू पे मनी टू द ओनर, इट इज अ लायबिलिटी। ड्राइंग्स क्या होता है? ड्राइंग्स हमने देखो कैपिटल का फॉर्मेट बनाया था, तो कैपिटल में से हमने सबट्रैक्ट किया था ड्राइंग्स, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कैपिटल। एक्चुअली कैपिटल नहीं है, कैपिटल में से सबट्रैक्ट होगा, कैपिटल के टेबल में से माइनस होगा, तो मैंने सी लिखा है समझने के लिए कि कैपिटल में से सबट्रैक्ट होगा। रिटर्न, अभी दोनों रिटर्न दिए, एक परचेस रिटर्न है और एक सेल रिटर्न है, एकदम सिंपल। परचेस नॉर्मली डेबिट होता है, तो परचेस रिटर्न क्रेडिट होगा। तो ये जो 6000 है ना, ये परचेस रिटर्न है, और ये 9000 है, ये सेल रिटर्न है। ओके, दोनों रिटर्न ट्रेडिंग में ही जाते हैं, तो मैं टी लिख देता हूँ। ऑलवेज रिमेंबर रिटर्न ऑपोजिट होता है। परचेस होता है डेबिट में, तो परचेस का रिटर्न हमेशा क्रेडिट में ही होगा। सेल हमेशा क्रेडिट में होता है, तो सेल का रिटर्न हमेशा डेबिट। इफ यू सी हियर, परचेस ये है डेबिट और सेल ये है क्रेडिट, तो परचेस का रिटर्न क्रेडिट में होता है, सेल का रिटर्न डेबिट साइड में होता है। ओके, द फर्स्ट कॉलम इज डेबिट एंड द सेकंड कॉलम इज क्रेडिट। राइट। कैरेज इनवर्ड, कैरेज इनवर्ड यानी जो गुड्स हम लोग ने पैसा भरा है गुड्स आने के लिए, तो गुड्स आने के लिए जो भी खर्चा होता है उसको डायरेक्ट एक्सपेंस बोलते हैं। ऑल डायरेक्ट एक्सपेंसेस विल गो इनटू ट्रेडिंग अकाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग आप बेचोगे, पैसा आएगा, आपकी प्रॉपर्टी है, एसेट। गुडविल भी सेम, इट इज एन एसेट। रेंट, रेट, टैक्सेस, रेंट है, कुछ बोला नहीं है तो ऑफिस का ही रेंट है, प्रॉफिट एंड लॉस। कमीशन, कमीशन दोनों कॉलम में लिखा है, तो पहला वाला कमीशन है आपने पे किया है, क्रेडिट में मतलब आपको रिसीव हुआ है, तो दोनों प्रॉफिट एंड लॉस में जाएगा। फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री का खर्चा, एनीथिंग रिलेटेड टू फैक्ट्री विल गो इनटू ट्रेडिंग अकाउंट। बैंक लोन आपकी लायबिलिटी है एंड कैश इन हैंड आपका एसेट है। लास्ट में दोनों का टोटल है। आई विल मेक वन स्मॉल चेंज हियर, इसके ऊपर लिखना चाहिए था। सो दिस इज particulars, this is your debit amount and this is your credit side. This is the debit and this is the ऊपर लिख देता हूँ trial balance as on 31/3/20 in books of Mr. शर्मा एंड कंपनी। हम लोग किसका बुक्स कर रहे हैं? शर्मा एंड कंपनी का कर रहे हैं। सो दिस वाज योर ट्रायल बैलेंस। मैंने सब जगह पे लिख दिया कि किधर क्या क्या आएगा। नाउ आई विल शो द पोस्टिंग। बिफोर पोस्टिंग सबसे ऊपर मैंने लिख देने का इन द बुक्स ऑफ शर्मा एंड कंपनी। अब मैंने थोड़ा कंजेस्टेड बनाया क्योंकि स्पेस नहीं है, तो ये सिर्फ समझाने के लिए। पर जब नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड व्हेन विल डू द सम, विल डू टेक्सचुअल सम्स, तो उसमें आपको मैं फुल ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस पूरा बनाऊंगा, ट्रायल बैलेंस नहीं बनाऊंगा, वो आप लोग बुक से करेंगे। ओके, so now let us start the posting. I now you can see this part. This is my trading account, this is my profit and loss account, and that is my balance sheet. तो मैंने आपको So now let us start with posting. Okay, so as soon as I do posting, I will tick mark. First is given plant and machinery, and we have written asset. So we will write it on the asset side. Plant and machinery, and we'll write 80,000. Now there are two columns in inward, inside column and outside column. Where to write that amount? Basically all amount will come in outside column except if you have to do any subtraction or addition, यानी आपको कुछ प्लस करना है या कुछ माइनस करना है तो आपको अंदर लिखना है, वरना आपको सब अमाउंट बाहर ही लिखना है। तो you should write all the amounts in outer column.
सिंस हमने ये सब में एडजस्टमेंट्स नहीं लिए तो अभी हम सब अमाउंट सिर्फ आउटर कॉलम में ही डालेंगे, सिर्फ जो नेसेसरी होगा वो वाला हम लोग अंदर के कॉलम में डालेंगे। अच्छा उसके पहले ट्रेडिंग में मैंने बोला था कंपलसरी स्टार्टिंग में पहले वो चीज लिख देनी है। सबसे पहला क्या आता है ट्रेडिंग में, टू ओपनिंग स्टॉक, उसके नीचे आएगा टू परचेज, फिर लेस रिटर्न, ये साइड पे आएगा बाय सेल्स और लेस रिटर्न, हियर कैपिटल और लेस ड्राइंग्स। ओके, सो these things you should always write in the beginning starting. चलो फर्स्ट हो गया। सेकंड दिया ओपनिंग स्टॉक 30,000, ओपनिंग स्टॉक विल कम हियर, तो मैं ट्रेडिंग में लिखूंगा 30,000। नेक्स्ट दिया है परचेज एंड सेल, तो पहला वाला परचेज है, दूसरा वाला सेल। So purchase I will write in the inner column, sale again I will write in the inner column. Why I have written it in the inner column? Because मुझे पता है कि मुझे सेल में से बाद में रिटर्न माइनस करना है, परचेज में से रिटर्न माइनस करना है। जिस भी चीज को सबट्रैक्ट करना है, ऐड करना है, that you will write in the inner column. Remaining everything you will write it in the outer column. Next furniture. Furniture is an asset. तो डायरेक्टली एसेट्स में लिखूंगा ना 1 लाख। उसके बाद वेजेस, वेजेस आर फैक्ट्री के एक्सपेंस, तो टू वेजेस कितना 7,000 आउटर कॉलम। उसके बाद सैलरी, ये सैलरी किसका खर्चा है, सैलरी फैक्ट्री का खर्चा है। फैक्ट्री के खर्चे कहाँ पे आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में, तो सैलरी विल कम हियर, टू सैलरी हाउ मच 18,000। नेक्स्ट दिया है बेड डेब्ट्स, बेड डेब्ट्स भी फैक्ट्री का खर्चा, ऑफिस का खर्चा है, तो ऑफिस के खर्चे कहाँ पे आते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस में, तो वी विल राइट हियर टू बेड डेब्ट्स इन द अमाउंट गिवन वाज 3,000। उसके बाद व्हाट इज गिवन, डेटर्स, डेटर्स एसेट्स में, तो हियर वी विल राइट debtors, what is the amount, 50,000. Okay, next creditors is the liability, so this side we will write credit. Why I have written, I have left some space, ड्राइंग के बाद अगर मुझे नेट प्रॉफिट ये सब करना पड़ेगा, इसके लिए मैंने थोड़ा स्पेस उसके लिए छोड़ा। क्रेडिट्स, नेक्स्ट इज कैपिटल, तो आई विल राइट कैपिटल इनसाइड। So next is drawings, 17,000, so I will write drawings 17,000 and I have done a bracket. Why I have done a bracket, क्योंकि अकाउंट्स में अगर जो भी चीज को माइनस करना है तो अगर आप ब्रैकेट करोगे तो रिमेंबर दैट यू नीड टू सबट्रैक्ट, तो ब्रैकेट इज बेसिकली कि मुझे सबट्रैक्ट करना है, इसके लिए मैंने इसमें ब्रैकेट किया। नेक्स्ट वन इज रिटर्न्स, सो रिटर्न्स I will write here 9,000 as sale return and 6,000 here as purchase. Please remember return opposite आता है, तो जो डेबिट का रिटर्न होता है that will come on the credit side, the credit return will come on the debit side. Next carriage inward 12,000, I have written trading, so to carriage inward 12,000 on the trading side. Next, so carriage inward के बाद land and building, it is asset, so I will write on the asset side land and building and 80,000. उसके बाद एक गुडविल है, asset 20,000, तो I will write here goodwill and 20,000. उसके बाद है rent, rates and taxes and profit and loss दिया, so we will be writing on the profit and loss this side to rent, rates and taxes, कितना अमाउंट है rent, rates and taxes का 12,000. उसके बाद है कमीशन, तो वो भी इधर आने वाला है, सी कमीशन, दो कमीशन दिए, डेबिट और क्रेडिट, डेबिट का आएगा इधर और क्रेडिट का आएगा ये साइड पे बाय कमीशन एंड द अमाउंट इज 5,500. इफ यू नोटिस कमीशन में दो अमाउंट दिए, एक डेबिट में दिया, एक क्रेडिट में दिया, जो डेबिट का दिया है वो डेबिट साइड में आएगा, जो क्रेडिट का दिया है वो क्रेडिट साइड में आएगा। नेक्स्ट फैक्ट्री रेंट, क्लियरली लिखा है फैक्ट्री रेंट, तो फैक्ट्री रेंट, फैक्ट्री का कोई भी खर्चा होता है तो किधर आता है, ट्रेडिंग अकाउंट, तो मैंने फैक्ट्री रेंट ट्रेडिंग अकाउंट में लिख दिया 20,000.
उसके बाद बैंक लोन इज अ लायबिलिटी, सो बैंक लोन आएगा लायबिलिटी में 11,000, और उसके बाद कैश इन हैंड तो वो आएगा असेट में, दैट इज बैंक लोन वाज टेकन इट रॉन्ग, बैंक लोन वाज 40,000 and cash in hand था 11,000. Okay, so what we have done is we have completed the posting from the trial balance to the respective ledgers on the balance sheet. Now one adjustment I will give you in this sum, क्योंकि आगे बढ़ने के लिए we require that one adjustment. The adjustment is closing stock is 50,000. So in this sum I am giving you closing stock 50,000. तो closing stock दो जगह आता है, एक इधर आता है by closing stock 50,000, और दूसरा क्लोजिंग स्टॉक एसेट में आता है, क्लोजिंग स्टॉक 50,000. दो जगह पे मैंने क्लोजिंग स्टॉक कर दिया. नाउ व्हाट आई विल डू, आई विल जो भी मैंने अंदर लिखा है सबट्रैक्ट करना है वो मैं सबट्रैक्ट करके बाहर लिखूंगा, फिर टोटल करके लेट अस फाइंड आउट द ग्रॉस प्रॉफिट, देन द नेट प्रॉफिट एंड फाइनली द बैलेंस. सो लेट अस स्टार्ट डूइंग द टैली पार्ट ऑफ द सम. टैली करते हैं. फर्स्ट 2 लाख माइनस 9,000 तो विल बिकम 1,91,000, और ये साइड पे 50,000 माइनस 6,000 तो बाहर आएगा 44,000. ओके, चलो जो मुझे लिखना था मैंने बाहर लिख दिया, मैं टोटल करता हूं. इस साइड का टोटल करते हैं 1,91,000 प्लस 50,000, तो क्या टोटल आता है 2,41,000. तो दोनों जगह पे 2,41,000. ये साइड का टोटल 2,41,000 नहीं है, देखते हैं कितना आता है. सो इट इज 30,000 प्लस 44,000 प्लस 7,000 प्लस 12,000 प्लस 2,000. सो दिस साइड टोटल इज एक्चुअली 95,000, बट आई हैव रिटन हियर 2,41,000. तो 95,000 को माइनस करूंगा 2,41,000 में से, तो मुझे डिफरेंस आया 1,46,000. इसका टोटल 95,000 है, वो नहीं लिखना है, उसको इसमें से माइनस करके जो डिफरेंस है वो लिखना है, which is 1,46,000. और जो डिफरेंस आएगा उसको बोलते हैं हम लोग टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरिड फॉरवर्ड, टू ग्रॉस प्रॉफिट सीड. अब ये अमाउंट इधर आता है 1,46,000 बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन. अभी सेम जैसे ऊपर टैली किया है, सेम टू सेम टैली. we'll do the total of this 1,46,000 plus 5,500. so here I will get total 1,51,500. so मैंने दोनों जगह पे लिख दिया 1,51,000, क्योंकि मुझे पता है वो you will not write this amount, जो ज्यादा होता है वो लिखने का, पर मुझे पता है कि ये ज्यादा है. मैं इस साइड का टोटल करता हूँ 18,000 प्लस 3,000 प्लस 12,000 प्लस 7,500. तो इस साइड का टोटल एक्चुअली है 40,500. तो मुझे 40,500 नहीं लिखना है, 40,500 को इसमें से माइनस करना है, और जो डिफरेंस है वो लिखना है, दैट इज माय नेट प्रॉफिट 1,11,000 टू नेट. तो मुझे 1,11,000 फिगर आया है. ठीक है, अब ये फिगर जाएगा कैपिटल में, तो यहाँ पे प्लस नेट प्रॉफिट 1,11,000 वहां से इधर आया. इसका टोटल करता हूँ 2 लाख माइनस 17,000 प्लस 1,11,000. That's 17,000 plus 1,11,000. So I get final answer is 2,94,000. अब मैं दोनों साइड का टोटल करके देखता हूँ सेम आता है कि नहीं. So 2,94,000 plus 75,000 plus 40,000. So each side का टोटल I got 409,000. अब देखते हो वो साइड का सेम आता है 80,000 plus 1 lakh plus 50,000 plus 80,000 plus 20,000
plus 11,000 plus 50,000. So here I am getting total of 3,91,000 minus difference is of 18,000. तो मैंने कोई आइटम स्किप किया 18,000 का. ट्रायल बैलेंस में सर्विलिटी लिखा. इसको पॉज करके ढूंढता हूँ. Okay, so the total was not matching. I found out the mistake. The mistake was the factory rent is written here 20,000, but by mistakenly I have written here factory rent as 2,000. As that was the difference, I will correct it. So we'll make the factory rent as 20,000. Once I have made factory rent as 20,000, total was 241,000. Now I will subtract 30,000, 44,000. 7,000, 12,000, and 20,000. Now we will get 1,28,000. The gross profit will be 1,28,000. 1,28,000. So plus 5,500. So we will get a total here is 133,500. So the total is 133,500. So now 5 minus 18,000 minus 3,000, 12,000 minus 7,500. So now we will get net profit as 93,000. How much? And this will go here. It will become 93,000. So now we will get the total 2 lakh plus 93,000. Plus 93,000 minus 17,000. So we get a total as 2,76,000 plus 7,000, 25,000 plus 40,000. So now we get the total same as 3,91,000. Okay. So now finally both the sides are tagged. Mistake was it was 20,000, but while copying I have written 2,000 and this is there. So this can even have with you an exam. So please notice that while copying the amount, you copy it properly, or else such type of error will occur. So pause the video and you can take this.